Assalamu alaikum. Wet Casements is a poem by John Ashbery. As far as this poem is concerned, you will not find much of the material on internet regarding this very complicated poem. Moreover, you will not be able to find any video on Dailymotion or YouTube regarding the analysis of this poem. So I thought to work on it. There were certain people who helped in the analysis, so I'm thankful to them. So, Wet Casement is a philosophical and a psychological poem by John Ashbery. So, there are certain things that we should know before we are going to the poem. So, first of all, there's Franz Kafka, who was a German speaking Jewish novelist and short story writer. And he is widely known among the major figures of 20th century literature. So his philosophy, his work of psychology, his novels, his short stories, they have several themes. And those themes are imprinted here on this poem as well. So we should know who he was. The second important concept is of the Avignon Bridge, which is in France. So it is half constructed, or you can say it is half destroyed now, because in a war it was destroyed and now it is not complete. So it is half bridge having 4 pillars, and there is stonework that is done under the pillars, which is very important in this poem. Here it is, the bridge in front of you in France. So you can see the 4 pillars, and it is half destroyed bridge. And people have now used it not for commuting, but for sightseeing and a part of history, or a monument rather. So people just come here for the sightseeing. Bottle imp is another thing which is used in the poem, so it is important concept we should know. So Robert Louis Stevenson wrote a book, The Bottle Imp. It was a novel. In the story, it is about a person who gets hold on a bottle. So ये जो bottle होती है ये बड़ी important होती है ना वे कि इसमें एक जिनी है या imp है who grants your one wish. आप उसकी विश उसकी यानी कोई भी विश वो आपकी ग्रांट करता है, लेकिन उसमें आपने एक तो उस बॉटल को परमानेंट अपने पास नहीं रखना, क्योंकि जिसके पास बॉटल हुई और वो मर गया तो वो परमानेंट हेल में जाएगा, जलेगा. सेकेंडली, अगर आपने इससे जान छुड़ानी है तो आपने ये किसी को सेल करनी है, तो उसको सेल करने के रिजल्ट में आप और सेल कहाँ पे करनी है, जिस प्राइस पे आपको मिली उससे कम प्राइस पे. सो ये उसकी एक वर्किंग होती है, टेक्निक होती है उसकी. सो दिस हैपन्स कि जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसको ये बॉटल मिलती है और वो इसके ज़रिए अपना एक बड़ा सा घर बनाता है. देन ही फॉल्स इन लव विद अ गर्ल, और जब वो उससे शादी करने के करीब होता है, सो ही डिस्कवर्स इतनी देर में वो बोतल से जान छुड़ा चुका होता है. सो ही डिस्कवर्स कि वो लेप्रोसी की डिजीज़ में है, कोढ़ का मरीज़ हो चुका है, मर्ज हो चुका है उसे. सो अब वो इस हालत में शादी नहीं कर सकता. सो दैट इज़ बेटर फॉर हिम टू गेट द बॉटल. वो बड़ी मुश्किल से बॉटल को ढूंढ के दोबारा अपनी डिजीज़ पूरी करवाता है, सही होता है. लेकिन अब बॉटल इतनी ज़्यादा बिक चुकी होती है कि उसकी कम से कम प्राइस नहीं लग सकती, क्योंकि जिसने वो बॉटल बेचनी है फर्दर वो कम प्राइस पे बेचेगा, तो अब उसकी प्राइस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है, लिहाजा वो बॉटल कोई नहीं ख़रीद सकता. अब ये लवर और बिलव्ड इनकी आपस में एक सेक्रीफाइस स्टार्ट होती है कि वो दोनों चाहते हैं कि हम रख लें ताकि उनमें से जो सेक्रीफाइस देने वाला है वो मर जाए और दूसरा जिंदा रहे. सो व्हाट डू दे डू, दैट इज़ अनदर थिंग व्हाट हैपन्स इन द एंड. सो द बॉटल imp concept is also used in this poem. Now, the poem itself. So first of all, we find reference of Kafka. So again, this is a psychological poem, and a psychological treatment is shown here. Psychological treatment is done there that we can see throughout the poem that is happening. So here the poem starts with the lines of Kafka written in yellow or highlighted in yellow. When Edward Rabin, coming along the passage, walked into
the open doorway, he saw that it was raining. It was not raining much. Now, this is about raining and then not raining much. So, Ashbery has linked these lines by Kafka with his poem. And the linkage is very strong in a way. We'll see how does he link it. So, about poem, there are certain psychological themes that he used. First of all, we are told that it is mild rain. It is raining, but the rain is not that much that stops the works. So एक वेडिंग गोइंग ऑन है, एक शादी का सीन है, एक शादी का मंजर चल रहा है जहाँ पे बारिश भी हो रही है और बड़ी माइल्ड सी बारिश है, कोई ज़्यादा बारिश नहीं है. और इसको जो राइटर है, पोइट है, वो उन लोगों को देख रहा है एक विंडो केसमेंट के, एक खिड़की के पीछे से उसके पेन्स जिसके ऊपर बारिश पड़ रही है उन कतरों की बैक से देख रहा है और उनको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा है. सो द लुक्स ऑफ अदर्स फ्रॉम देयर ओन आइज, और उनको कैसे ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरह वो अपने आप को देखते हैं. अब देखिए, हम में से हर बंदा अपने आप को सबसे बेहतरीन समझता है, हमारा एक इमेज है अपनी नज़र में, और फिर एक इमेज वो है जिस तरह लोग हमें देखते हैं. सो हम इस चीज़ के बारे में ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि लोग हमें कैसा देख रहे हैं. सो यहाँ पे पोइट उन लोगों को ऐसे देख रहा है जैसे कि वो खुद को देखते हैं. और फिर द पोइट इज ऑब्जर्विंग द पीपल फ्रॉम द जेस्चर्स, द वर्क्स, द वे दे सिट स्टैंड. वो वेडिंग पे किस तरह की आदत हैं उनकी, किस तरह के एहसासात हैं, किस तरह की हरकत कर रहे हैं, पोइट इन सबको ऑब्जर्व करता है. देन यू आर लुकिंग एट देम विद योर ओन आइज. सो पोइट उनको इस तरह देखता है जिस तरह आप वो लोग खुद अपने आप को अपनी आंखों से देख रहे हैं. लेकिन देखने वाला इनफैक्ट कौन है? पोइट, जो कि एक खिड़की के पीछे है और खिड़की के पीछे से एक बारिश पड़ती हुई, जिस पे बारिश की बूंदें पड़ रही हैं, उस खिड़की के पीछे से उनको देख रहा है. और ये वो लोग हैं जो कि उस वेडिंग पे मौजूद हैं. ठीक है. सो पीपल समटाइम्स कम and then they disperse, but they leave some impression. So this is what the poet wants to talk about. कि लोग आते हैं, लोग किसी जगह पे इकट्ठे होते हैं और हर बंदा जाने के बाद एक इम्प्रेशन छोड़ के जाता है अपना. अब वो जो इम्प्रेशन है उसके ज़रिए उस शख्स को याद रखा जाता है. The imp cannot come out of the bottle, though it can see the surface. Similarly, जो लोगों का एक इम्प्रेशन है हमारे तक, वो एग्जैक्टली हम उनको उस तरह जान नहीं सकते जो कि वाकई उनके अंदर एक चीज़ है जिसको शायद हम जानना चाहते हैं. अब जिस तरह इम्प है, इम्प लोगों की विशेष तो पूरी कर रहा है, लेकिन वो हमेशा बॉटल के अंदर है. उसे सरफेस नज़र आ रहा है, लेकिन वो सरफेस तक जा नहीं सकता क्योंकि वो बॉटल्ड है, वो बॉटल के अंदर कैद है. इसी तरह एक चीज़ वो है जो लोग हमें दिखा रहे हैं हमारी नज़र से, एक चीज़ है जो कि उनकी अपनी नज़र से है. वो जो रियलिटी है, जो प्रेजेंट में रियलिटी है, जो कि उनकी हकीकत है. कहते हैं ना कि मोमिन वो नहीं जिसकी महफिल पाक हो, मोमिन वो है जिसकी तन्हाई पाक हो. तो उनकी तन्हाई क्या है वो हमें नहीं पता. तो हम जिस तरह उनकी तन्हाई को नहीं जान सकते, इसी तरह इम्प उस बॉटल से बाहर निकल के सरफेस तक नहीं जा सकता. वो देख ज़रूर रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा उसको उसका नहीं पता. सिमिलरली हमें उन लोगों का नहीं पता इससे ज़्यादा कि जितना हम उन्हें देख रहे हैं. Similarly, we see and meet people, but we don't know their real selves. हम लोगों को देखते हैं, डेली लाइफ में उनसे मिलते हैं, लेकिन हमें उनकी लाइफ्स का पता नहीं होता कि रियल में उनकी लाइफ में क्या है. We cannot grasp the present of people. So this is timeless present. एक present वो है उनका जो कि हमारे सामने है कि मैं एक बंदे को देख रहा हूँ, मेरे सामने काम कर रहा है. जैसा पोइट देख रहा है कुछ बंदे शादी पे आए हुए हैं, तो एक प्रेजेंट ये है. एक उनका प्रेजेंट वो है जो टाइमलेस प्रेजेंट है, जिसको पोइट भी नहीं जानता, जिसको वो खुद जानते हैं. एक बंदा अपने आप को जानता है कि मैं कितना नेक हूँ, कितना गुनाहगार हूँ. खैर यहाँ पे नेकी गुनाह की बात नहीं हो रही, सिर्फ एक दूसरे को जानने की बात हो रही है. सो हम नहीं जान सकते किसी को सिर्फ उसके अपीयरेंस को देख के या किसी एक मीटिंग में, जैसा पोइट सिर्फ एक मीटिंग में उन लोगों को देख रहा है विंडो पेन के पीछे से. सो विंडो पेन जिस पे बारिश पड़ रही है वो भी एक तरह से एक ब्लर सीनरी है, जिससे हम
एग्जैक्ट उनके जेस्चर्स तक नहीं पहुंच पाते। तो इसमें पोइट ये कहना चाह रहा है कि वो जो विंडो पेन है बेसिकली वो एक तरह से दीवार है जिसके ज़रिए हम किसी बंदे को सही तरह जज नहीं कर पाते। सो दिस एपिस्टेमोलॉजिकल स्क्रीनशॉट जो कि एक इल्म से भरा हुआ उनकी तस्वीरें हैं, एक पिक्चर्स हैं, यानी जो उनकी रियल पिक्चर्स हैं, जो उनकी रियल नॉलेज है उनके बारे में। और वो पिक्चर पोइट कह रहे मैंने वर्ड्स से बनाई, मैंने अल्फाज से बनाई, कि जिस तरह हम किसी बंदे को देखते हैं तो एक करेक्टर स्केच बनाते हैं उसका, और वो अपने अल्फाज के ज़रिए बनाते हैं। और फिर क्या होता है, उस पिक्चर को हम जिस तरह हमने फॉर एग्जांपल अपने वॉलेट में रख लिया, उसमें हम मुख्तलिफ कागजात डालते रहे, नोट निकालते रहे, कभी वॉलेट भर जाता है, कभी स्लिम हो जाता है, लेकिन वो जो पिक्चर है वो इतने ज़्यादा तस्वीरों नोट्स के आने जाने की वजह से क्रम्बल हो गई, ख़राब हो गई, और वो यानी उसकी सिमेट्री सही नहीं रही। सो इन द सेम वे वी हैव नेम्स ऑफ पीपल इन माइंड बट वी डू नॉट स्टडी देम डीपली। हमारे माइंड से वो तस्वीरें भी ब्लर हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। लोगों के नाम हमारे माइंड में रह जाते हैं, लेकिन उनकी डीप स्टडी हम नहीं कर पाते, हम उनकी डीप स्टडी को उस तक पहुंच नहीं सकते। पोइट कहते हैं आई ट्राई टू अंडरस्टैंड देम आई कैन नॉट। मैं उनको जानने की कोशिश करता हूं लेकिन मैं नहीं जान सकता। तो मैं क्या करूंगा उस सूरत में, हेंस आई विल बिल्ड अ ब्रिज। उस एवन ब्रिज के एग्जाम्पल देते हुए कहता है कि मैं एक ब्रिज बनाऊंगा। एंड करे ये सारा चूँकि मैं गुस्से में हूँ, मुझे इस चीज़ पे गुस्सा आया कि मैं उनको समझना चाह रहा हूँ तो मैं उन्हें नहीं समझ पा रहा, तो रिज़ल्ट क्या होगा, मैं एक ब्रिज बनाऊंगा और फिर उस ब्रिज में उस पर खड़े होके, अब वो ब्रिज वो अपनी पोएम को भी कह रहा है, ब्रिज उस रिलेशन को भी कह रहा है, उस पर खड़े होके मैं किसको देखूंगा, अपने आप को। मैं अपने आप से ये चीज़ अमल शुरू करूंगा जानने का, सेल्फ डिस्कवरी या सेल्फ रियलाइजेशन। इससे पहले मैं दूसरों को जानूं तो मैं पहले अपने आप को जानूंगा। आई विल लुक माई सेल्फ इन इट बट नॉट इन द वाटर बट इन स्टोन फ्लोर। सो ये जो आपने देखा पीछे आवन ब्रिज के जो 4 पिलर्स से, उन चारों पिलर्स के नीचे स्टोन फ्लोरिंग है जो कि बड़ी रिमार्केबल है। वो भी एक रीज़न है जिस वजह से इन्होंने उस ब्रिज को डिमोलिश नहीं किया। तो बड़ी क्रिएटिव किस्म की स्टोनिंग की गई है, स्टोन फ्लोरिंग की गई है। तो ये कह रहे हैं कि मैं उस स्टोन फ्लोरिंग के जो पैटर्न्स हैं उसमें अपना इमेज देखूंगा। पानी में नहीं देखूंगा, पानी में तो नजर आ जाएगा, मैं उस पैटर्न में देखूंगा। पानी में देखना इसी तरह जैसे मैं किसी शख्स को शादी पे देख रहा हूँ। स्टोन में अपने आप को जानना इस तरह जिस तरह मैं एक बंदे को शादी पे देख रहा हूँ और मैं उसके दिल के हालात को भी जान रहा हूँ, यानी मैं उस बंदे को अच्छी तरह समझ रहा हूँ। आई विल थिंक अबाउट माई सेल्फ नॉट अबाउट वट अदर्स थिंक अबाउट मी। अब मैं लोगों को यानी अपने आप को लोगों की नज़र से नहीं देख रहा कि लोग मेरे बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं। वी कैन नॉट जज पीपल। मैं अपने आप को देखना चाहूँगा अपनी नज़र से, अपनी ओपिनियन से, और उस स्टोन फ्लोरिंग में मुझे अपना आप नज़र आएगा। सो द मोरल ऑफ इट इज़ और द एंड ऑफ इट इज़ कि वी कैन नॉट जज पीपल। हम लोगों को कभी जज नहीं कर सकते, हम उन्हें कभी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, अगर हम करना भी चाहें तो। बहुत ही फिलोसॉफिकल और कॉम्प्लेक्स किस्म की ये पोम है। इसको पढ़ने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी भी होगी, इंटरप्रिटेशन भी आपको मुश्किल लगेगी, लेकिन अगर आप इन थीम्स को जहन में रखेंगे तो आपके लिए ये आसान होगा। वो जो ब्रिज है बेसिकली ब्रिज इनकम्प्लीट है, डिस्ट्रॉयड है, वॉट एवर फॉर द रीज़न डिस्ट्रॉय हो गया ब्रिज। अब वो ब्रिज पूरा नहीं है उस दरिया या समुंदर के दरमियान। अब ब्रिज का पूरा ना होना भी एक सिंबल है, एक मेटाफर है। और वो किस लिए यूज़ कर रहा है वो, एक तो इस चीज़ के लिए कि हम लोगों को पूरी तरह अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। जिस तरह वो ब्रिज आपको पूरी तरह एंड तक ले नहीं जाता, हम इस तरह लोगों को कंप्लीटली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। हम कोशिश भी करना चाहें तो हम उन्हें पूरी तरह समझ नहीं पाते। सो दिस वाज द थीम ऑफ द वेट केसमेंट्स। आई होप यू अंडरस्टूड। आई कैन अश्योर यू कि आपको ये चीज़ इस तरह इतने डिलिब्रेट एनालिसिस के साथ, इतने डिटेल्ड एनालिसिस के साथ कहीं नहीं मिलेगी। सो यूट्यूब इज़ एम्प्टी, आई एम शॉक्ड टू सी। हालांकि इसके ऊपर काम होना चाहिए था, बट सिंस दिस इज़ फिलोसॉफिकल वर्क तो हर बंदा इसके ऊपर हाथ नहीं डालता। सो स्टे ट्यून, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। अगर कुछ नहीं समझ आया तो यू कैन राइट दैट इन कमेंट्स एंड आई एम ऑलवेज देयर टू आंसर यू। Next, we are coming up with Stinga, that is another poem by John Ashbery. Thank you very much.